आप हमारा स्क्रीन देख पा रहे होंगे। प्लीज रिस्पॉन्स विधि श्रीवास्तव, कैन यू हियर मी? विधि श्रीवास्तव, कैन यू हियर मी? यस सर। हाँ, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, डिक्शनरी से शुरू करेंगे। व्हाट इज अ डिक्शनरी? सो फर्स्ट हाँ, क्या हुआ? हम लोग डिक्शनरी से शुरुआत आज करेंगे। डिक्शनरी पर अभी तक हम लोगों ने जितने भी कलेक्शन पढ़ा हुआ है उसमें आपको एक पैटर्न दिखाई पड़ा है। एंड यू इफ यू रिमेंबर, you can see that the storage mechanism of all sequence are same। ठीक है, एक चीज हमने कहा, टर्म नाम लिया सीक्वेंस। जितने भी स्ट्रिंग हो, लिस्ट हो या टपल हो, ये सारे ही जो है सीक्वेंस है। बट डिक्शनरी इज नॉट अ सीक्वेंस, it is a unordered pair। Unordered pair of what? Unordered pair of keys and values, right? There are two terms, first one is keys and second one is value। तो important point is unordered pair। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग एक डिक्शनरी को बनाने की कोशिश करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा what I am trying to say। D for dictionary and this one, right? This start with curly braces। It has no input arguments, means you are creating dictionary without any argument, right? अगर हम इसको जो है एग्जीक्यूट करते हैं, if I want to see what is D, what is nature of object D, I am writing type of D। If I execute, I can see that this is a dictionary। ठीक है ना? तो ब्लैंक डिक्शनरी में कोई आर्गुमेंट नहीं है। इस तरीके से ब्लैंक डिक्शनरी भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना? अब हम लोग कुछ वैल्यूज के साथ डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं। फर्स्ट वन, दिस इज कर्ली ब्रेसेस। तो जैसे हमने ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस रखा, एट द सेम टाइम एंड कर्ली ब्रेसेस इटसेल्फ appear, right? First one is key। key can be a number or key can be a string। anything is possible as a key। ठीक है ना? So you do not worry about that key is just a number। जो की है वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, की जो है कैरेक्टर भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग एक की बना दे रहे हैं ABC। दिस इज माई की एंड वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू दिस की इज लेट्स से 5, right? So first value ABC is a key value and second one is value, right? First one is a key and second one is a value। So keys and values separated by colon symbol, right? So this is my first ordered pair। This is my first ordered pair in which first term is a key and second one is a value, right? I am writing down second key। Second key is a string, it is LMN and corresponding value is let's say 10, right? And third value is XYZ and corresponding term with this is 20। ठीक है, क्या दिक्कत हो गई अंकित? अंकित एनी प्रॉब्लम? अंकित, हाँ, तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये हमारा डिक्शनरी है। दिस इज अनऑर्डर्ड पेयर। व्हाई आई एम सेइंग अनऑर्डर्ड पेयर? आई हैव specified term in a specific order, but I am saying that is unordered pair। Why unordered? Because if I print what is content of D, you will see no any fixed pattern is present, right? I have created terms ABC first, then LMN as second term, XYZ at the third term. But when I print content of D, ordering must not preserve, right? A random list is displayed on the screen। That's why it is called unordered pair। तो हमने एक डिक्शनरी को क्रिएट कर लिया है। अब इस डिक्शनरी के कंटेंट को देखना चाहें, इफ आई वांट टू सी व्हाट इज कंटेंट ऑफ D, I am printing object D, right? If I execute it, I can see this is my key value, ABC is my key and this is LMN is a key, this one is a key। तो यहाँ पर जो पहला टर्म है, this is the key attribute, this is value, so this is a ordered pair, this one is a ordered pair। ठीक है ना? जो पहली वैल्यू है सो की बोलते हैं and second value is called value। ठीक है ना?
तो यहाँ पर हमने इसको प्रिंट किया, तो यहाँ पर जो है इस तरीके से एक एक कंटेंट आया। अब कुछ चीजें यहाँ पर जानने की जरूरत है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट डिक्शनरी इज नेचर ऑफ डिक्शनरी इज म्यूटेबल, ठीक है ना। डिक्शनरी इज म्यूटेबल मीन्स यू कैन change content of this dictionary after its creation. So you can say that dictionary is a mutable object, right? Second thing is key attribute. Key attribute, तो key attribute है, this is immutable. Key attribute is stable, right? Once key is created, you cannot modify it. So two point which is necessary to remember. First one is dictionary is mutable itself, and key is immutable means you cannot modify key. For example, there is no any mechanism by which you can change this value, right? You can't change this value or this value or this value. So जो आपका डिक्शनरी है, डिक्शनरी का जो की है, की इज इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट, हाउएवर एंटायर डिक्शनरी इज म्यूटेबल इन नेचर. फॉर एग्जांपल, if I want to change, if simply I want to change value of this is my object D, and what I am doing, I am changing value of ABC. ये वीडियो बंद कर दीजिए, अभी वीडियो को बंद कर दीजिए, वीडियो को बंद कर दीजिए, ये इसको बंद कर दीजिए. ठीक है. What I am doing, I am modifying value which is associated with key ABC. For example, if I am assigning this value as -5, if I execute it and print what is content of D, right? अगर हम इसको देखते हैं तो आप देख पाएंगे कि initially when it was created, its value associated with key ABC was 5, but after this operation value is modified by -5. That is what I mean to say. I mean to see that this is mutable in nature. Mutable means modify, जिसको modify कर पाए. तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हम जो है जो वैल्यूज है उसको मॉडिफाई कर ले रहे हैं. लेकिन अगर हम लोग एक मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, अगर हम लोग एक की एट्रीब्यूट जो पहले से प्रेजेंट नहीं है, इसको जो है ऐड करने की बात करते हैं, तो नए टर्म्स की तरह ऐड होगा और लास्ट में ऐड होगा. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू ऐड अ न्यू टर्म, दिस इज माई ऑब्जेक्ट डी, and I am introducing a new term in this dictionary. D is D, and key associated with this one, let's say PQR. This is my new key, and PQR, this is my new key, and value associated with this one is 20. If I execute it, बंद करिए, बंद करिए, बंद करिए. ठीक है. तो यहां पर देख रहे हैं, if this key is not present, this key was not present at the point of creation. ठीक है ना. तो if it was not present at point of creation and I am again introducing a new value associated with this key, so this value is inserted after at the last. ठीक है ना. तो अगर ये वैल्यू पहले से, अब अगर आप D को प्रिंट करते हैं, you are able to see new डिक्शनरी. अगर आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो डिक्शनरी है, डिक्शनरी में नया टर्म इंट्रोड्यूस हो चुका है क्रिएशन के बाद. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड म्यूटेबल ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड पेयर. ठीक है ना. तो सीक्वेंस से डिफरेंशिएट है, डिफरेंस है सीक्वेंस से. सीक्वेंस में आपके तीन सीक्वेंस आते हैं, स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल.
ये सीक्वेंस है एंड डिक्शनरी इज नॉट अ सीक्वेंस, इट इज अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ कीज एंड वैल्यूज। ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट टर्म है, what internally happening, internally how it is stored. If you want to define it, you can see that each key correspond to a value, means there should be a map. ठीक है, there should be a map, one map between keys and values. A key, a single key is associated a single value. So the key terms can be used to access value present at different locations. जो sequence में था, sequence, in the sequence, if you could remember, in sequence terms are accessed by the help of index, but in dictionary terms can be accessed by the help of its key values, right? So this is difference between sequence and dictionary. ठीक है ना। अब मान लीजिए कि ये जो हमने डिक्शनरी लिया हुआ है, इस डिक्शनरी से पहले टर्म्स का हमको एक लिस्ट बनाना है। फॉर एग्जांपल व्हाट आई एम डूइंग, दिस इज माय ऑब्जेक्ट डी एंड आई एम कलेक्टिंग फर्स्ट टर्म फ्रॉम दिस डिक्शनरी। ठीक है ना, दिस इज माय ऑब्जेक्ट डी एंड आई एम कलेक्टिंग फर्स्ट टर्म इन दिस ऑर्डर्ड पेयर्स। First term is keys. So what I am doing, I am creating a list of keys. So if I execute it, you will able to see that this one, this is the key attribute. ये जो आपको लिस्ट मिल रही है, ये देखिए किसमें है, डिक्शनरी की जो आपकी कीज है, you can see that this is a list which contains key values from this dictionary D. ठीक है ना। तो अगर हम लोग ऐसे लिखते, if I simply write down in this way D dot keys, ठीक है ना, तो आप देख पाएंगे कि जो कीज हैं ये पहले टर्म्स जितने ऑर्डर्ड पेयर हैं, फर्स्ट टर्म फ्रॉम ईच पेयर इज अ की ऑफ डिक्शनरी। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर वैल्यूज को हम लोग प्रिंट करना चाहे, वी वांट टू फेच सेकंड वैल्यू फ्रॉम ईच पेयर, राइट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम फेचिंग सेकंड वैल्यू फ्रॉम द ईच पेयर। सो हाउ कैन दिस पॉसिबल, प्रिंट d dot values। ठीक है, d dot values, this is inbuilt function, so this function is invoked by help of object and I am printing response of this inbuilt function। तो अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, एक लिस्ट मिलेगी, जो ये जो सेकंड वैल्यूज है इससे मिल करके बनने वाला एक लिस्ट मिलेगा। इफ आई एग्जीक्यूट इट, आई कैन सी दैट दिस इज अ लिस्ट which contains second value from each pair। ठीक है ना। So in this way you can separate key values and pair from this object। समझ में, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से कीज और वैल्यूज को हम लोग सेपरेट आउट कर रहे हैं, एक डिक्शनरी से सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अगर यहां पर देखिए हमने एक की जो पहले से प्रेजेंट नहीं है, अगर हम लोग यहाँ पर वैल्यू दे रहे हैं तो ये नया टर्म्स इंट्रोड्यूस हो रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पर फॉर एग्जांपल इफ आई प्रिंट डी, एक बार डी को प्रिंट कर ले रहे हैं, फिर नया ऑपरेशन कर रहे हैं, दिस इज माई डी, व्हाट आई एम डूइंग, डी at this key attribute ABC and this one is equal to 10, right? Not 10, this is 100. So a distinct difference you could see in this dictionary। ठीक है, अगर आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पर देखिए एग्जीक्यूट हो गया। व्हाट दिस इज डूइंग, दिस इज अपडेटिंग ओल्ड डिक्शनरी। ठीक है ना। इस तरीके से अगर हमने किया हुआ है तो ओल्ड डिक्शनरी जो है अपडेट हो रही है, लेकिन ये एट्रीब्यूट अगर न्यू है तो दिस विल ऐड अ न्यू टर्म इन द लास्ट। ठीक है ना। इन दिस वे यू कैन क्रिएट डिक्शनरी। ठीक है ना। समझ में आ रहा है प्रीति साहा, प्रीति साहा समझ में आ रहा है, तृप्ति सिंह,
नीलेश, 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 समझ में आ रहा है? प्लीज रिस्पॉन्स समबडी, प्लीज रिस्पॉन्स। Yes, sir. हाँ ठीक है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जो डिक्शनरी है, वन पॉसिबिलिटी इज इफ डिक्शनरी कंटेंट जो ऑर्डर्ड पेयर है, दिस लिस्ट इज वेरी लार्ज, सो यू कैन नॉट राइट इंटायर स्ट्रिंग अ सिंगल लाइन इन अ सिंगल लाइन, ठीक है ना। ये जो आपका ये ऑर्डर्ड पेयर है, दिस ऑर्डर्ड पेयर इज टू लार्ज that you cannot write content in a single line. So what I am trying to do, I am writing this is my string D is I am simply copying this string rather than creating. I am simply copying this string. This is my dictionary and I am copying. ठीक है, तो इसको हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो डिक्शनरी क्रिएट हो गई। अगर ये कंटेंट बहुत लंबे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है ना, ईच लाइन कंटेन्स वन ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। पहले लाइन में एक की एक वैल्यू, second line also contain a key and a value, third line also contain a key and value. So if you cannot write entire content in a single line, you can associate, you can concatenate, you can write your content in multiple line. This is my first line, और पहले लाइन के बाद हमने स्लैश लगा दिया है, सेकेंड लाइन के बाद स्लैश लगा दिया है, थर्ड लाइन के बाद स्लैश लगा दिया है, सो दैट ये सारी लाइनें जो हैं एक ऑब्जेक्ट डी के पार्ट इसको इंटरप्रेटर इंटरप्रेट करते हो। अगर आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं, फर्स्ट लाइन को अगर आप एग्जीक्यूट करते हैं तो ये एग्जीक्यूट कर गया है। अगर हम डी को प्रिंट करते हैं, व्हाट इज कंटेंट ऑफ डी, तो यू कैन सी दैट दिस डी कंटेंस, ठीक है ना। यहाँ पर हमने सिर्फ इसलिए लिखा हुआ है कि अगर कंटेंट बहुत लंबा है, टू मेक डिफरेंस, to distinguish between each pair, I am simply writing down each order pair in a new line, and after each pair I am writing slash. So this is my first pair, this is my second pair, this is my third pair, fourth pair and so on. हर एक पेयर जो है उसके आगे स्लैश लगाया है, मीन्स जो कंटेंट है, कंटेंट आफ्टर दिस ऑर्डर पेयर इज प्रेजेंट इन न्यू लाइन, राइट। content present in new line means content present in new line, ठीक है ना। तो स्लैश साइन हम लोग किस लगाते हैं, इफ कंटेंट इज प्रेजेंट इन न्यू लाइन, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पर हम लोग चीज देख पा रहे हैं, एक चीज हम लोग देख पा रहे हैं कि जो टर्म्स हैं, टर्म्स आर नॉट, you cannot access term by its index, it is ordered pair, so it is unordered pair and terms cannot access by its index, ठीक है ना। इसके इंडेक्स से हम लोग एक्सेस नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, हम लोग we can access each term by its key, ठीक है। तो कैसे एक्सेस करेंगे, एक लूप हम लोग लगा दे रहे हैं, for i in नहीं, for key in D is my object, ठीक है ना। प्रिंट अभी रबिन को ले जाओ, इसको बंद कर दो इसको। प्रिंट D is my object and what I am doing, I am printing value corresponding to this keys, ठीक है ना। अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पर एरर आ, की इज नॉट डिफाइंड, व्हाई इट इज नॉट डिफाइंड, फॉर की इन, अच्छा डॉट कीज कर दे रहे हैं, ठीक है, फॉर d dot keys and this one, hopefully this is all right. If I execute it, I can see yes, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए हम लोग कैसे कर रहे हैं, d dot keys से हमने एक लिस्ट क्रिएट कर लिया है and this list contains second value from each pair. So first value associated with this pair is -5 and second value associated with key LMN corresponds to 10
XYZ corresponds to 20 and PQR corresponds to 20। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस तरीके से लूप से हम लोग कीज से एक एक टर्म्स को एक्सेस कर पा रहे हैं। वी कैन एक्सेस ईच टर्म बाय इट्स कीज, ठीक है ना। यहाँ पर इंडेक्सिंग की जरूरत नहीं है। जो आपने सीक्वेंसेज, इफ यू आर फेमिलियर, इफ यू कैन रिकॉल classes, you can remember that item can be accessed by help of its index, but today I am saying that items can be accessed by a key, because each key is associated with a value, means there is a one-to-one map between keys and values। ठीक है ना। एक एक की और वैल्यूज जो है आपस में जुड़े हुए हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है। तृप्ति सिंह, तृप्ति सिंह, तृप्ति, सलोनी मौर्य, प्रीति, समझ में आ रहा है? नीलेश, नीलेश, समझ में आ रहा है? प्लीज रिस्पॉन्ड समबडी, प्लीज रिस्पॉन्ड समबडी। समझ में आ रहा है? प्लीज रिस्पॉन्ड समबडी। प्रीति, कितने लोग हैं इस समय यहाँ पर पार्टिसिपेंट के? मैं नाम देख के बोलता हूँ, एक से पूछ लेता हूँ। विश्वास, चिरंजीत विश्वास, प्रोबेबली चिरंजीत विश्वास इज देयर। चिरंजीत विश्वास, कैन यू हियर मी? पूजा, प्रीति, शिखा, सृष्टि, विधि। शिखा, कैन यू हियर मी? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ ठीक है, बस ऐसे रिस्पॉन्ड कर दीजिए, लगे कि मतलब आप जो है प्रेजेंट हैं बस। ठीक है। यस सर। हाँ ठीक है। बीच में जब पूछते रहते हैं कि आप प्रेजेंट हैं, ऐसा तो नहीं है फोटो लगा के मतलब कहीं बाहर चले गए। यस सर। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? व्हाट नाउ वी आर ट्राइंग टू डू, हम लोग जो है एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं। एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, लेट्स से डिक्शनरी इज D1, at point of creation it has no, it has nothing। ठीक है ना। जब हमने D1 को क्रिएट किया, इसके अंदर कुछ नहीं है। अब हम एक वैल्यूज की वैल्यू को कीबोर्ड से लेंगे और वैल्यूज को भी कीबोर्ड से लेंगे, एंड आफ्टर ऑपरेशन वी विल अपडेट दिस ब्लैंक स्ट्रिंग, ब्लैंक डिक्शनरी विद सर्टेन वैल्यूज, राइट। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि जो n है, n इज इक्वल टू 3, मीन्स हम लोग यहाँ पर 3 रिकॉर्ड को इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे, 3 रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। फॉर i इन रेंज ऑफ 3। ठीक है ना। तो यहाँ से हमने ऐसे किया, तो जो आपका सीक्वेंस जनरेट होगा, इट विल जनरेट 0 1 2 एंड 0 1 एंड 2। अब पहली वैल्यू को हम लोग कीबोर्ड से ले रहे हैं, तो जो पहली वैल्यू है वो की है, तो हमने कह दिया की दिस इज माय फर्स्ट वैल्यू। वेरिएबल में आप जानते हैं कि आप कुछ भी लगा सकते हैं, और की को हम लोग जो है इनपुट, इनपुट इज अ फंक्शन, यहाँ पर हमने लगा दिया इंटर, इंटर की, इंटर की। ठीक है ना। दिस इज माय फर्स्ट एट्रीब्यूट, एंड सेकेंड एट्रीब्यूट इज वैल्यू। ठीक है ना। सेकेंड एट्रीब्यूट हमने वैल्यू बना दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए इंटर सेकेंड इज अ वैल्यू, इंटर जो वैल्यू आएगी इसको हम लोग जो है नंबर बना दे रहे हैं। इनपुट, इनपुट इज अ फंक्शन टू टेक इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, इंटर corresponding values। ठीक है ना। तो पहली वैल्यू जो आ रही है वो की को करस्पॉन्ड करेगी, एंड सेकेंड वैल्यू सिंपली करस्पॉन्ड्स टू वैल्यू। एंड व्हाट आई एम डूइंग, आई एम एसोसिएटिंग डिक्शनरी D1 और इसके की पर जो की वैल्यू है इस पर हम लोग वैल्यू को असाइन करते रहे। ठीक है ना। तो जो की है ये वैल्यू असाइन हो गई। अब अगर ये एग्जीक्यूट करती है आफ्टर 3 इटरेशन, यू कैन सी दैट
डिक्शनरी, ब्लैंक डिक्शनरी इज अपडेटेड विद सर्टेन वैल्यूज, राइट। अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इंटर की, लेट्स से की इज 100, दिस इज माय की। नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए ये जो है थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, इसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, एक नया जो है कंट्रोल सी एंड इंसर्ट ऑफ क्रिएट अ न्यू फाइल, ठीक है ना। थोड़ा गड़बड़ होगा, पूरा लिखना पड़ेगा, पूरा एक एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट नहीं लिख पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि जो है एग्जीक्यूट करने के बाद एक एक वैल्यू हम लोग नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो है होपफुली अगर हम पाइथन के एडिटर पर लिखेंगे तो दिस विल वर्क बेटर, ठीक है ना। अगर पाइथन एडिटर पर लिखेंगे तो इसका आउटपुट रिस्पांस देख पाएंगे सिंगल लाइन पे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बार बार कीबोर्ड से इनपुट ले रहे हैं, तो यू कैन नॉट टेक इनपुट, मेजर इनपुट फ्रॉम दिस एडिटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग जो है इसको किसी दूसरे एडिटर पर हम आपको इसको दिखा देते हैं, लेकिन अभी जो है यहाँ पर न्यू पाइथन, ठीक है। अच्छा, ये तो एडिटर ही ओपन हो रहा है, कंट्रोल पी, फाइल, सेव एज, ABC, सेव and I am executing this one. Enter keys A। अब सेकेंड वैल्यू जो है हमको इनपुट करना है, तो सेकेंड वैल्यू जो है वो आ नहीं रही थी, ठीक है ना। इंटर करस्पॉन्डिंग वैल्यू, लेट्स से 1 2 3, की एट्रीब्यूट इज B, corresponding value I can say 200, not 200, 200, this is my second value, and third value, my key attribute is C and third value is 300, ठीक है ना। इसको अब हमारी जो डिक्शनरी, जो ब्लैंक डिक्शनरी थी, जो D1 ऑब्जेक्ट था, when it was created at point of creation it was a blank dictionary, but after this operation we have associated a key A with value 1 2 3, key B is associated with value 200, key C is associated with value 300. If I print object D, you can see print my object D1, this is my object, if I print I can see yes, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट D1 हमने क्रिएट किया था at point of creation, this dictionary was blank, but after execution of this loop I have associated keys with value, ठीक है। तो 3 इटरेशन के बाद आप जो डिक्शनरी देख पा रहे हैं कि जो डिक्शनरी है, ये डिक्शनरी क्या हो जा रही है, ठीक है ना। ये चीज हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि एक वैल्यू को डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू डिलीट दिस वन, आई वांट टू डिलीट दिस वन, सेकेंड ऑब्जेक्ट को हम लोग डिलीट करना चाहते हैं, तो देखिए कैसे लिखेंगे, दिस इज डिलीट, और किसको हम लोग डिलीट करना चाहते हैं, दिस इज माय ऑब्जेक्ट डी एंड एट्रीब्यूट की वैल्यू इज बी। अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो है व्हाट इज हैपनिंग, इनवैलिड सीक्वेंस D1, और D1 से जो ऑब्जेक्ट है लाइन 1, दिस इज माय ऑब्जेक्ट D1। एक बार फिर से हम लोग इसको प्रिंट कर लेते हैं, व्हाट इज D1, D1 is okay, so
ऐसे ऐसे कर सकते हैं, डी डॉट डिलीट डिलीट, और इसका जो की एट्रीब्यूट है, दिस इज माई बी। ठीक, object has no attribute delete। ओके, डिलीट। अच्छा, एक तरीका और है, हम लोग कर सकते हैं d1 डॉट पॉप। ठीक है, एक तरीका और है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज d1 डॉट पॉप एंड एट्रीब्यूट इज b। अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख पा रहे हैं ये जो एट्रीब्यूट है, ये जो है निकल के बाहर आ रहा है। ठीक है ना। अब फिर से हम लोग अगर d1 को एग्जीक्यूट करते हैं, इफ आई एग्जीक्यूट इट, आई कैन सी दैट सेकेंड टर्म इज डिलीटेड, right? So probably delete function is no more part of Python 3. It was part of Python 2. So instead of delete function, I have second choice pop, right? So pop function can be used in the Python 3. यहाँ पर हमको क्या पास करना है, इसके अंदर हमको पास करना है की को हमने पास किया, तो जो की corresponding value to this key will be deleted from the dictionary। ठीक है, तो यहां से ये डिक्शनरी डिलीट हो जाएगी। ठीक, अच्छा एक चीज और कि अगर मेंबरशिप फंक्शन है, व्हाट अबाउट मेंबरशिप फंक्शन? यस, मेंबरशिप फंक्शन आल्सो वर्क इन द डिक्शनरी। फॉर एग्जांपल, इफ आई राइट डाउन दैट दिस print that this character a in d1 डॉट कीज। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट डिक्शनरी है, डिक्शनरी से हमने D1 ऑब्जेक्ट के कीज का हमने एक लिस्ट बनाया, एंड आई एम सर्चिंग दैट दिस कैरेक्टर, दिस की इज प्रेजेंट इन दिस सेट। यस, दिस विल रिटर्न ट्रू और फॉल्स डिपेंडिंग ऑन दिस कैरेक्टर इज प्रेजेंट इन दिस सेट और नॉट। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग प्रिंट करके देखते हैं तो अभी जो है हम देख पा रहे हैं कि इसका आउटपुट जो है ट्रू आना चाहिए। ठीक है, बट इफ आई प्रिंट if I write down what is, if d is d in q d in d1 dot key, since d is not a key attribute, so output must be false। इसको हमने एग्जीक्यूट किया तो false यहाँ मिलेगा। not in just opposite of not in is just opposite of inoperative। तो अगर हमने यहाँ पर not in लिखा हुआ है, now output should be true। अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमको यहाँ पर ट्रू मिल रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमने लिखा a not in, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि a जो है a इज प्रेजेंट इन d1 डॉट की, सो नॉट इन फंक्शन विल रिटर्न फॉल्स।